Good morning, church. Good morning, church. We welcome you in the name of Lord and Savior Jesus Christ to this Heart of Christ live stream. यीशु मसीह के नाम से हमारे का स्वागत करते हैं हार्ट ऑफ क्राइस्ट ये लाइव स्ट्रीम में। Hope you all are doing well. विश्वास करता हूँ आप सब सुरक्षित हैं। Let us start this wonderful morning by praising and worship in truth and spirit. आइए सुंदर सुबह को हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति करके आत्मा और सच्चाई में। Let us pray that God should lead us through in His ways. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी राहों में हमें चलाए। And let not the devil distract you. और कभी शैतान को मौका न दे आपको यहाँ वहाँ भटकने के लिए। Amen. आमीन। So let us open our Bibles to Matthew chapter 18. आइए मत्ती का किताब हम खोलेंगे 18 अध्याय from verse 16 to 20. 16 से हम पढ़ेंगे 20 तक। But if he will not here take with you one or two more, that by mouth of two or three witnesses every word may be established. यदि वह न सुने तो एक या दो वचन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses to even hear to the church, let him be to you like a heathen and tax collector. यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसियाओं को भी न माने तो उसे अन्य जाति और वसूल लेने वाले जैसा जान। Assuredly I say to you, whether you bind on earth will be bound in heaven, and whether you loose on earth will be loosed in heaven. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। Again I say to you, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, to you that if two agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। For where two and three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus, for this wonderful time you have given us, Lord Father. परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने दिया। Lord, thank you for what you have done in our lives, Lord प्रभु Jesus. जो कुछ भी कार्य अपने हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्यवाद। Lord, as we all have gathered in this morning, जैसे ये सुबह के समय में हम सब एक जगह में इकट्ठे हुए हैं, as we are going to praise and worship you, जैसे स्तुति आराधना हम करेंगे, you be in the midst of us, Lord God. प्रभु आप हमारे बीच में रहिए। As in your word you have said, प्रभु जैसे अपने वचन में कहा, where two and three are gathered in my name, I am there. जहाँ दो तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हूँ। Lord, we pray, Lord Jesus, for you to be in the midst of us. प्रभु हम मांगते कि आप हमारे बीच में आइए, Send your angels in charge over us, Lord. आपके स्वर्गदूतों को भेजकर हमें Protect us, सुरक्षित Lord रखिए, Jesus. सुरक्षित रखिए प्रभु। Thank you for shedding those precious blood on the cross of Calvary. प्रभु धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य लहू को कलवरी के क्रूस में हमारे लिए बहाया। Because of the love you showed on the cross, we are saved today. प्रभु क्योंकि आपने ये प्रेम को क्रूस पर दिखाया, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। Thank you, Jesus, for showing a second chance, Lord God. धन्यवाद यीशु कि आपने दूसरा एक मौका हमारे जीवन के लिए दिया। Thank you, Jesus, for protecting us and covering us with your precious blood. धन्यवाद यीशु आपने हमें सुरक्षित अपने लहू से ढका है। Thank you, Jesus, for what you have done in our lives, Lord और God. जो कुछ भी आपने किया आज तक उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus, for protecting us throughout the week. पूरे हफ्ते आपने हमें सुरक्षित रखा उसके लिए धन्यवाद। I pray for the worship team आराधकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, as they take us through worship. प्रभु जैसे वो आराधना में चलाते हैं, Send your Holy Spirit to us, Lord. पवित्र आत्मा को आप भेजिएगा। Let us have peace and unity in our families. और प्रभु हर एक के परिवारों में वो शांति और समाधान हो जाए प्रभु। Let there be no problems in any of their lives. उनकी समस्याओं को निकाल दीजिए, कुछ न हो प्रभु। Protect them, Lord God. उन्हें सुरक्षित रखिए Let them not go empty-handed. और खाली हाथ वो इस जगह से न जाए। As Pastor shares his word, जैसे पासवान हमसे संदेश बांटेंगे, let us learn new things, Lord God. नई चीजें सीखने के लिए हमें मौका दीजिए प्रभु। Show us new revelations. और भी प्रकाशित वाक्य हमसे बात कीजिए। Show us the things which we have not even heard of. वो चीजें दिखाइए जो आज तक हमने कभी सुना नहीं है। Thank you, Jesus, as we're going to do so. धन्यवाद यीशु, ऐसे करेंगे। Once again, I submit each and every one of us into your hands. हर एक जन को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। You take total control. आप चलाइए। And Lord Jesus, whoever watches this live stream,
जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, bless them, Lord God. उन्हें आशीष कीजिए। Let them receive a message in their life. एक नए संदेश उनके जीवन के लिए मिले। Let the message be fulfilled in their lives. ये संदेश उनके जीवन में पूरा हो जाए। Let no one have any problems in their life. और कोई समस्या उनके जीवन में न हो। Thank you, Jesus, you're going to do so. आप ऐसे ही करें, उसके लिए धन्यवाद। Once again, I submit each and every one of us into your hands. हर एक जन को एक और बार हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। You take total control. आप चलाइए। In the name of Jesus, I humbly pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Worship Him and glorify His holy name. Amen. जैसे हम उनकी आराधना करते हैं, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे और पूरे हृदय के साथ उनके नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर का आराधना करेंगे। आमीन। कोई भी चीज हमें रुका नहीं सकता। विश्वास के संग ताली बजा के खुशी के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कोई कहे मुझे पागल दीवाना, कोई कहे मुझे आशिक परवाना, कोई कहे इसकी है ना दिखाना, कह दो जो तुम दिल चाहे। शाम और सवेरा वो है मेरा, मैं हूँ उसी का। कह दो जो तुम दिल चाहे, 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 कह दो जो तुम दिल चाहे। शाम और सवेरा वो है मेरा, मैं हूँ उसी का। कह दो जो तुम दिल चाहे, 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 कह दो जो तुम दिल चाहे। कोई कहे
कहे मुझे आशिक परवाना, कोई कहे इसकी है रानी तारा, कह जो तुम दिल चाहे। यीशु का प्यार है सागर से गहरा, बरसाता मुझ पर शाम और सवेरा, वो है तेरा मैं हूँ उसी का, कह जो तुम दिल चाहे, 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 कह जो तुम दिल चाहे। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। एक आखिरी बार हम गाएंगे। तेरी है सृष्टि से ऊंचा, सबसे मैं प्यारा हूँ तेरा, स्वर्ग से धरती, धरती से सूर्य चढ़ा तू मेरे ही कारण। ओ गाऊंगा मैं नाचूंगा भी तेरे लिए ही प्रभु जी, गाऊंगा मैं नाचूंगा भी तेरे लिए ही प्रभु जी। कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे हाँ, कोई कहे मुझे पागल दीवाना, कोई कहे मुझे आशिक परवाना, कोई कहे इसी है रानी तारा, कह जो तुम दिल चाहे। यीशु का प्यार है सागर से गहरा, बरसाता मुझ पर शाम और सवेरा, वो है तेरा मैं हूँ उसी का, कह जो तुम दिल चाहे, 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 कह जो तुम दिल चाहे। हालेलुया। एक छोटा ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कह लो जो तुम दिल चाहे, जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के हृदय के करीब है, वो है कि आप और हम उनकी स्तुति आराधना करें, वो है कि हम उनको अपना पहला स्थान दें। जो कुछ भी सिचुएशंस में आप हैं, हम प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हृदय को उठाएंगे। जैसे आप अभी घर से हमें देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। Because he is worthy, he deserves all the glory, honor and praise. There is none like him and there is none besides him. Hallelujah. Lift up your voices as you worship the Lord. अपने आवाज उठाकर उनकी स्तुति करेंगे। Thank you Jesus, thank you Lord. प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं प्रभु। आपकी करुणा हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए है। You are good and your love endures forever. You are worthy. Let us all lift up our voices and pray and seek His face, because you are good, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Jesus. Lord, we pray as your children are worshiping you. At this time, as we worship you together, Lord, we pray let your healing power, let your marvelous touch them right now, Father. Let your right hand touch them in Jesus' name. आपके दाएं हाथ से प्रभु आपके बच्चों को छू लीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुख दर्द को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपके बच्चे आपकी आराधना करते हैं, जैसे जोशुआ के टाइम में सभी आपके जैसे आपने कहा आपकी आराधना करते हुए they were walking round the walls of Jericho and the walls of Jericho came down. Lord Jesus, the same way as we worship you, we pray that every wall, every disturbances, every problem in the children's lives be brought down in Jesus' name, प्रभु। जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, हर एक दीवार, हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से तोड़ दिया जाए प्रभु। हम जैसे आपकी आराधना करें, हर एक घर पर शांति आनंद उमड़ने दे प्रभु। We thank you Jesus। विश्वास के साथ आप हमारे साथ आराधना करें और प्रभु आपके जीवन में नया कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus। हालेलुया।
His power. In quietness and trust, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and clouds roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. Yes, I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर समय जो आपने दिया। Lord, as we sang, Lord Father, even those storms come, प्रभु जैसे हमने गाया, आंधी आए, तूफान आए, जो कुछ भी संकट हमारे जीवन में आए तो भी हम आगे बढ़ेंगे और हम जयवंत होंगे यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी इस आराधना में आप इस जगह में मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति इस जगह में मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, हम आपको देते हैं। जो कोई इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो देखने वाले हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इनके जीवन को आप जानते हैं, हर एक समस्या दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं केवल आप प्रभु। और आज भी सब चीजों को आपके हाथ में देते हैं। आने वाले दिनों में ये जन आपके लिए गवाही बनाकर उनको खड़ा कीजिए प्रभु, ताकि जहाँ कहीं वो जाए आपके नाम की महिमा हो। हर कठोर दिल को हम यीशु मसीह के नाम से नम्र बनाते हैं प्रभु। हम कुछ नहीं, आप सब कुछ हैं, केवल आपके नाम की महिमा हो। जैसे वचन को भी सुनेंगे हम मांगते हैं, वचन द्वारा हमसे बात कीजिए। इस अंतिम दिनों में आपके लिए रोशनी बनाकर हर एक को खड़ा कीजिए प्रभु। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। एंड जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। है वचन सुनने का। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी रेडी प्रिपेयर्ड विद द वर्ड। अपने बाइबल खोल के तैयार रहिए। हम जो भी प्रभु आपसे बात करता है उसका नोट्स ले लीजिए, ताकि प्रभु आपको ये पूरे हफ्ते आपको चलाएगा। Hallelujah. And as we lift the Lord's name and glorify Him, हम जैसे आप अभी बैठे हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं जहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि वो भी जुड़ सकते हैं आपके साथ मिलकर और प्रभु उनसे भी बात करें। Also speak to them and speak through you and through us to them, and let us build together each other for the glory of God. Hallelujah. तैयार रहेंगे? जैसे हम पास्टर राज वर्गीस आएंगे आगे और आपको वचन बांटेंगे। Let's join along together, बाइबल खोलकर तैयार रहेंगे। Hallelujah. अभी इतना दिन से, इतने सालों से और आपको और हमको जो संभालने वाला परमेश्वर पर हमेशा हम भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। We need to believe in the Lord who protected us all these years and all these days. और जो परमेश्वर जो बता रहा है वो सच बात है। Whatever the Lord speaks is true. और उसका वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है तो हमें आशीष मिलने वाला है। And we need to believe in His word and then we will receive blessings. आज जो प्रभु आपको तक जो बात करने वाला है, जो हम हर दिन प्रार्थना जो करता है, हर दिन प्रभु का वचन सुन रहा है, मेडिटेट कर रहा है, लेकिन हमारा प्रार्थना क्यों उसको उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? Why we don't receive
the answers for our prayers in spite of we praying and talking to the Lord. Everybody need, हम सबको कुछ ना कुछ चीजों का जरूरत है, We all require something, लेकिन हमारा प्रार्थना हर टाइम उसका आंसर कभी-कभी नहीं मिलता है। but we don't get our answers all the time. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको जो बता रहा है, And the Lord is speaking to you. Matthew chapter 18 verse 19, मत्ती 18 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय जो प्रभु बता रहा है, जो पृथ्वी में मतलब जो अभी के ये समय में जो एक मन होके प्रभु को पुकारना है। Just as the word says that two people in one heart must look at the Lord. और एक मन होके प्रार्थना करना है। In oneness they have to pray. एक मन होके मांगना है। With oneness they need to ask the Lord. मतलब इसके बारे में आप जो सोच लीजिए, अगर एक मन में आप साथ में बैठता क्या? Now you need to think, do I sit in one heart? तो हमें ये सीखना है, एक मन होके प्रार्थना करने की आज से आप निर्णय लीजिए। You must ask yourself, do I pray together? Do we pray together with oneness? And today you need to ask the Lord to teach you. और जो परमेश्वर जो बता रहा है, और मेरा पिता तुम जो मांग रहे हैं वो दे देंगे। And the word says that my Father will give you whatever you ask. और इसीलिए आज के दिन से आपका जो प्रार्थना का जो स्टाइल है बदल दीजिए। So from today, change the style of your prayer. अगर आपको जीवन में परिवर्तन होना है, जीवन में आशीष लेना है, जीवन में अनंतकाल जीवन लेना है, तब अपने परिवार के साथ मिलके प्रार्थना करना जरूरी है। If you want blessings, eternal blessings, you want answers to your prayer, you need to pray together with your family. और दूसरे जो वचन में लिखा है, वर्स 20 में लिखा है, 20 में, For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। ये जो बता रहा है, 2 और 3 जन जो जगह में मेरे नाम से जो बैठता है, वो जगह में मैं मौजूद हूँ करके बता रहा है। It says in this word that when 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. 19 वचन में जो लिखा है, जो जगह में जो अगर व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना किया तो मेरा परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर देंगे। The previous verse said when 2 people come together with oneness and they pray, the Father answers their prayers. और जो 20 वचन में जो लिखा है, जो और 2 और 3 जन जो जगह में मेरा नाम से रहेंगे, तो वो उसका बीच में मतलब उसका बीच मिडिल में मैं आऊंगा करके। And this verse 20 says that when 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. हालेलुया। Hallelujah. अब इसमें देख लीजिए किस तरफ जो परमेश्वर का वचन कार्य हो रहा है। And we need to see how the word brings to life, comes to life. अब देख लीजिए, हम एक्सोडस पढ़ेंगे निर्गमन में, निर्गमन 19 वर्स 9। And the Lord said to Moses, Behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and believe you forever. So Moses told the words of the people to the Lord. तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बात करूँ, तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करे। और मूसा ने यहोवा के लोगों की बातों का वर्णन किया। अब ये देख लीजिए, जो नाउ अभी एक्सोडस 17 लेंगे, 17 वचन में वर्स 9। And Moses said to Joshua, Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand.
मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर चाट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जो समय में जो इस्राएल के साथ में अमालेकियों के साथ में लड़ाई शुरू हो गया है, So we see that there was a war between Israel and the Amalekites. और वो जगह में परमेश्वर जो बता रहा है मूसा से, जो तुम जाके पहाड़ के ऊपर जाओ, मेरा जो स्टिक लेके तुम खड़ा हो जाओ। And we see that the Lord is telling Moses that you go to the hill and you hold your staff and stand on the hill. और उसी अनुसार जो मूसा ने योशुआ से जो बता रहा था, तुम जाके लड़ाई शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। And Moses tells Joshua, you go and begin the war and I will be praying for you. Verse 10. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। अब ये देख लीजिए, योशुआ ने लड़ाई के लिए चला गया, और ये जो पहाड़ के ऊपर मूसा और आरोन और हूर, ये तीनों जन जा रहा है। So we see that Joshua goes for the war and Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. Verse 11. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। अब ये देख लीजिए, जो मूसा दोनों हाथ से ऊंचा उठाने के समय में जो लड़ाई से प्रबल होता था। So we see that when Moses lifted both his hands, Israel was winning and prevailing the war. परंतु जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। अब ये देख लीजिए, तब तक इनका जो हाथ दर्द होने समय नीचे आने के समय में अमालेक प्रबल होता था। So when Moses' hands were aching and he brought his hands down, that time we see that Amalekites were winning the war. काफी समय से लड़ाई चल रहा है। So there was this war going on for a pretty काफी long समय time. से मूसा दोनों हाथ को ऊंचा पकड़ के खड़ा है, And for a long time Moses was lifting up his hands. लेकिन उनका काफी हाथ दर्द होने से धीरे धीरे आने के समय में, नीचे हाथ आने के समय में वो जो है अमालेक आगे बढ़ रहा था। So when Moses was lifting up his hands, the Israelites were winning, and as his hands were getting tired and he lowers his hands, the Amalekites were winning. अब ये देख लीजिए, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, If you are a person who prays परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करने वाला है, and you believe in the Lord परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करने वाला है, and you have faith in the Lord, आप परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करने के समय में, लेकिन आपके लिए क्या क्या कभी कभी दुश्मन मतलब शैतान आपके खिलाफ काम कर सकता है, and when you pray and look up to the Lord, there are times that the enemy is against you, तो उससे जीतने के लिए क्या करना होगा? and what do you have to do for that? अब ये देख लीजिए, आगे वचन में जो लिखा है, And we'll see the next verse. Verse 12. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. पर जब मूसा के हाथ बढ़ गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। अब ये देख लीजिए, काफी समय में मूसा खड़ा रहा, सुबह से लेके तो थक गया है, उसने उसको बैठने के लिए एक बड़ा पत्थर लेके उनको पीछे बिठा के दिया था। So we see that Moses was tired and by lifting his hands, so they kept a stone and made him sit on it. और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। अब ये देख लीजिए, एक साइड में आरोन और दूसरे साइड में हूर में दोनों जन इनका हाथ को पकड़ के मतलब सपोर्ट दे रहा था। So we see that Aaron and Hur were supporting his hands on either side. और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मतलब शाम तक वो जो उसका दोनों हाथों ऊंचा पकड़ के रखा था, दोनों से सपोर्ट किया, मदद किया है, और उसी समय में क्या हो गया? यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया।
अब ये देख लीजिए, जो मतलब जो दोनों जन सपोर्ट दिया, मूसा का हाथ ऊंचा रहता था। So we see that Aaron and Hur were supporting the hands of Moses, और वो जगह में विजय पाया है। and we see that the Amalekites अब ये समझ were लीजिए, defeated. एक परिवार होने दो, एक कोई भी होने दो, अपने साथ में 2 और 3 जन जरूरी है प्रार्थना के लिए So सपोर्ट be चाहिए। it for instance your family, you need the support of 2 or 3 within your families itself. और ये मतलब नहीं, अब अकेले प्रार्थना किया तो आपका प्रार्थना नहीं सुनेंगे, It doesn't mean that if you pray alone your prayers won't be heard. आपका प्रार्थना वो सुनेंगे, जरूर God सुनेंगे। definitely will be listening to your prayer. लेकिन आपका और मत समझ लीजिए, सामने वाले काफी ताकत से आपको लड़ाई हो रहा है, आपके खिलाफ काम चल रहा है, आपके जीवन के खिलाफ काम चल रहा है, आपका आत्मिक जीवन में आपको खिलाफ काम चल रहा है, तब आपको साथ प्रार्थना करने के लिए दूसरे की जरूरी है। When the enemy is fiercely against you and more overpowering you, you need the support to fight with, and you need the support of your family and your prayers, and that is why you need to pray together with oneness. हालेलुया। Hallelujah. अब ये देख लीजिए, कोई सामान कुछ बहुत बोझ है, बहुत वजन है, वो सामान एक अकेले आदमी उठाने की बहुत मुश्किल लग रहा है। Now say for instance there is something, some heavy burden that you have to carry, some heavy bag for instance. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कुछ बड़ा सामान, एक गोनी राइस और केव और कुछ जो भी आप लेके आ रहा है, And for example, if you're coming from the market and you're bringing some rice, sack of rice and all, उसको अकेले उठाने के समय में काफी तकलीफ होता है। and it's very difficult to carry it alone. आपका वाइफ और बच्चों लोग कोई भी साथ में उसको हाथ लगाए तो कितना आसान हो जाता है। If your wife and children all will put their hands and help it together, how easier it will be. हालेलुया। तो इस तरफ से जो मतलब जो आप साथ में मिलकर प्रार्थना करने से आपको आशीष जल्दी मिलने वाला है, When you come together to pray, you receive your blessings even more और faster, विजय मिल जाएगा। and you will be successful. हालेलुया। हालेलुया। तो आज से मेरे प्रियो, आपका जो प्रार्थना करने से, जो भी आपके घर के अंदर जो भी वाइफ है, पति है, पत्नी है, जो बचा है, साथ में मिलके एक मन होके प्रार्थना कर लीजिए। So whoever is in your house, be it your husband, wife, children, or all those who are living with you in your house, why not come together and pray and seek God in oneness of आप ये heart? मत सोचिए कल जो विजय काली देने वाला है, It's not about only being victorious. आपको जो मृत्यु के समय में भी प्रभु बचाने वाला है। He will also save you from death. हम ये भी वचन पढ़ेंगे प्रभु के ऊपर जो किस तरह हम भरोसा करने समय में क्या होता है। यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह चैप्टर 70 वर्स 7। सत्रह 7। Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार माना है, उसको ऊपर प्रभु आशीष देने वाला है। The man who has his hope on the Lord is the one who will be blessed. और जो परमेश्वर उनको ऊपर भी भरोसा करने वाला है। And the Lord also puts his trust on such people. हालेलुया। Hallelujah. अब इसीलिए कारण जो क्या होता है, अगर जीवन में जो भी समस्या आए तो भी प्रभु मदद करने वाला है। So even if there is problems coming across your lives, but the Lord will be your help. और जो प्रभु जो अगर इस तरफ जो प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखेंगे, प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा रखेंगे, तब क्या होने वाला है। And when you trust the Lord and put your trust in God, what is going to happen? हम दानियल की किताब में दानियल चैप्टर 2 वर्स 49 पढ़ेंगे। तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोड़े पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। Daniel chapter 2 verse 45. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver and the gold, the great God has made known to the king what will come to pass after this. The dream is certain and its interpretation is sure. 46.
Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel, and commanded that they should present an offering and incense to him. इतना सुनकर नेबुकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। हालेलुया। Hallelujah. अब ये देख लीजिए जो दानियल के समय में जो क्या हो गया है। And we see what happened in the times of Daniel. अब जो राजा नेबुकदनेस्सर ने सपना देखा, We see that the king Nebuchadnezzar had a dream. और सपना देखने बाद उसको मन में तो बहुत डर लग गया था, बहुत समस्या आ गया था। And he had a lot of fear and worries in his अपने देश में mind. सबको बुला के जो बता रहा था, मैं जो सपना जो देखा है उसके बारे में हमको बताओ। He called all the important leaders and told them that I had a dream and tell about it. और जो सब जन जो दोषिया उधर का जो भी बड़ा बड़ा जो आदमी जो बता रहा था, आप सपने के बारे में बताइए, तब उनके बारे में हम दिखा सकता है। And we see that all those men, they came and these wise men, they said, tell us a dream and we'll interpret it for you. और राजा ने जो कहा, नहीं तुम सपना के बारे में भी बताओ और उसका डिटेल भी बताओ करके सबको आगे दिया। But the king said, no, you have to tell me what the dream is and its interpretation. और जो वो अगर जो तुम नहीं बताएंगे सबको तुम खत्म कर डालेंगे करके उन्होंने आज्ञा दे दी है। And the king gave command that if you don't tell me and give me the answer, then I'm going to kill all of you. और जो प्रभु का जो दास है दानियल का पवित्र आत्मा था, And the son of a servant of God, Daniel, had the spirit of God. और जो सपने के बारे में व्याकुल देने के लिए उसके बारे में बताने के लिए उनको बस बुद्धि और ज्ञान दिया था परमेश्वर ने। God had given him the wisdom to Daniel to know what the dream is and to explain about it. अब ये देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सपना देखने के बाद उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में सर्च करेंगे। ये तो सपने के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, जो हम जो देखा जो सपने के बारे में तुम उसके बारे में बताओ करके सवाल उठता था। Now if someone had a dream and they tell the dream and it's easy to explain the dream, but if someone says no, I had the dream but you tell me what the dream is and what its interpretation is. लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता ने जो नेबुकदनेस्सर जो राजा ने जो देखा सपने के बारे में भी बताया, उसका मतलब भी बता दिया। That which was impossible was made possible through Daniel as the Spirit of God was with him, that he could tell what the dream was and gave its interpretation. जो 46 में जो लिखा है, जो दंडवत किया दानियल के सामने राजा नीचे उसको प्रणाम किया है, उसको आदर किया है, उसको महिमा किया है। And we see that in verse 46 that the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel. और 47 में जो लिखा है, The king answered Daniel and said, truly your God is the God of gods, is a God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal this secret. फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया। अब ये देखिए, तुम्हारे जो परमेश्वर ईश्वर से ईश्वर है। He says that your God is the God of gods, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, King of kings, वेदों का खोलने वाला है, वेदों का मतलब जो भी छुपा हुआ है, जो भी सीक्रेट है उसको डिक्लेयर करने वाला है। revealer of secrets. हालेलुया। अब ये देखिए, परमेश्वर से कोई भी छुपा नहीं सकता है। Nobody can hide anything from the Lord. जो छुपा हुआ चीज को प्रभु प्रकट करने वाला है, दिखाने वाला है, डिक्लेयर करने वाला परमेश्वर है। Those things that are even kept secret and hidden from the Lord can be revealed by God. ये जो नेबुकद राजा ने जो देख के उसके सामने जो हो गया, वो भरोसा कर दिया है। And the king Nebuchadnezzar had seen what happened in front of him and he believed in God. और उन्होंने वो देश को बाबिलोन देश का प्रधानमंत्री कर दिया है। And he promoted Daniel in the city of Babylon. और 49 में देख लेंगे। Also Daniel petitioned the king and he set Shadrach, Meshach and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. हालेलुया। तब डैनियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बाबिलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। परंतु डैनियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। डैनियल ने जो दरबार में जो बैठता था,
we see that Daniel was sitting at the gate, और उनके 3 दोस्त दो शाद्रक मेशक अबेदनगो, and his 3 friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, उनको वो भूला नहीं है। he didn't forget them. अब ये देखिए बहुत जन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, साथ में सब प्रार्थना करेंगे, सब कुछ काम करेंगे, लेकिन एक आगे बढ़ने के बाद दूसरे को भूल जाता है। We see that many people, they pray together, they come together, they'll seek God together, but once somebody is promoted, is lifted up, they forget everybody else. और जो नेबुकदनेस्सर ने जो ड्रीम के सपने के जो बारे में जो बता रहा था, तब दानियल ने अपने 3 दोस्त को जाकर बता रहा था, इस तरफ जो राजा ने जो बताया, हमें साथ में मिलकर प्रार्थना करना है, और सब जन प्रार्थना कर दिया और दानियल को उत्तर मिल गया है। When Nebuchadnezzar had a dream and he had given such commands that if you don't answer, all these things will happen, Daniel had informed his friends about all the situations that the king Nebuchadnezzar had said, and together Daniel and his friends seeked the Lord, and that's when he found the answer. अभी जो प्रधानमंत्री होने के बाद वो अपने दोस्त के लिए राजा से बात करके तीनों को अच्छे स्थान में रख दिया है। And once Daniel got such a good position because of the king in the province of Babylon, he also recommended his friends to the king. अब ये देख लीजिए, इसके बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या किया, 60 फीट ऊंचा में और 6 फुट चौड़ा में एक बड़ा मूर्ति बना दिया अपने सिर से। And after this incident, we see that the king Nebuchadnezzar had built a statue which was nearly 60 feet tall. और अपने देश में सब जन को जो बड़ा-बड़ा जो सबको जो प्रभु को जो लीडर को सबको बुला दिया। And he had called all the leaders and all the elders of the place. वो जो मूर्ति जो बनाया था वो जगह में उनको सबको बुला दिया। And he had called everybody to that location where the statue was और erected. उन्होंने आगे दिया पूरा संसार से सब जन जो है ये जो इसको मूर्ति को जो उन्होंने जो बनाया उनको ऊपर प्रणाम करना है, दंड करना है, दंडवत करना करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। And he had called all the leaders towards this place where the statue was erected, and he told all of them to bow down and worship this. अब ये देख लीजिए, ये समय में जो प्रभु के जो दासों के जो खिलाफ जो काम करने वाला जो सिटी में जो बाबिलोन में था, वो लोग क्या कर रहा था, आगे एक इनको ऊपर जो गलत पकड़ने के लिए कुछ मौका ढूंढता था। And we see that all those people who were against Daniel were waiting when to bring something against Daniel. And वो जो शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में वो जो बता रहा है। And it's written about Shadrach, Meshach, and Abednego. क्योंकि ये तीनों पैलेस में अच्छे स्थान में है, लेकिन प्रभु का खिलाफ वो कार्रवाई नहीं किया है। Though they were in the palace, in good position in the palace, but they never did anything against the Lord. और जो देख के सब जन देख रहा है, जो इन्होंने जो बड़ा मूर्ति जो बनाया उनको ऊपर जाके प्रणाम करने के लिए, आदर करने के लिए जो बुलाया, लेकिन ये शाद्रक मेशक अबेदनगो तीनों जन उसको आदर नहीं किया है। But we see that though it was commanded that you have to be prostrate, you have to worship it, but they did not listen. तब जो राजा को बस आके जो बता रहा है, जो आपका जो 3 व्यक्ति आपने जो अच्छा संभालने की जो रखा है, ये तीनों जन ये आपका मूर्ति को ऊपर प्रणाम करने के लिए और आपको दंडवत करने के लिए वो तैयार नहीं है करके जो बता रहा है। And those people go and complain to the king that your children, leaders, they are not worshipping your statue, not bowing to your statue. Daniel chapter 3 verse 9-10. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music shall fall down and worship the gold image. वे नेबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी है। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, नारसिंगी, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे। वो बता रहा है, तब जो म्यूजिक जो बजाएंगे, तब जो सोने के जो मूर्ति जो बड़ा जो बनाया था उसके नीचे दंडवत करना है करके आपने बताया था। So they are saying that when all this music, when you hear all this, that they were supposed to bow down before the golden image. और जो कोई गिरकर दंडवत न करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए।
वो बता रहा है अगर जो आगे नहीं बढ़ना है उनको जो आग जो लगा हुआ आग का जो कुआं है मतलब उसके अंदर उसको डाल देंगे करके। So whoever does not bow down and worship this golden image will be thrown into the fiery furnace. और 12 में लिखा है देख, शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। जो आपने जो उसको अधिकार जो दिया है अच्छे पोस्ट में जो रखा है वो जो तीनों जन। So these people are complaining that there were those certain Jews who you have kept over the province of Babylon. उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। आपका आगे का कुछ चिंता नहीं कर रहा है, ये तीनों जन अपना मर्जी से कर रहा है, आपको प्रणाम नहीं करता है। And these three men, Shadrach, Meshach and Abednego, are not paying attention or they are not listening to your orders. वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। आपका जो देवता आपने जो प्रणाम जो किसका जो कर रहा है उसका आराधना नहीं करता है। They don't worship your gods nor worship this gold image that you have set up. जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। अभी आपने जो सोने की जो इतनी बड़ी मूर्ति जो बनाया उसको भी दंडवत नहीं करता है। And they are not worshipping this golden image that you have erected. सबसे पहले जो बता रहा है आपका जो देवता देवती के वो प्रणाम नहीं करता है। First complaint was they don't worship your gods. और आपने अभी जो सोने की जो मूर्ति बनाया उसको वो दंडवत नहीं करता है। And the image that you have erected, that also they are not worshipping. तब राजा को गुस्सा आया। So the king was very angry. और जो बता रहा है Then Nebuchadnezzar, in rage and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach and Abednego. So they brought these men before the king. तब नेबुकदनेस्सर ने रोष और जल जलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्राक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। अब ये देखिए तुरंत उसने बुलाया अभी के भी लेके आ जाओ तीनों को। So they were commanded to bring these men immediately there. और जो बता रहा है राजा ने उनको तीनों को बुला के बता रहा है। So the king calls them and says, "Is it true, Shadrach, Meshach and Abednego, that you do not serve any gods or worship the gold image which I have set up?" नेबुकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते। ये जो बता रहा है ये शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो ये सच बताए क्या? So the king is questioning Shadrach, Meshach and Abednego. Is it मेरा true देवता देवती की तुम आराधना नहीं करते हो that you are not worshipping my gods? और जो मेरा जो सोने के जो पुतले जो बनाया है उसको तुम प्रणाम नहीं करते हो And you are not worshipping the golden image that I have erected? और तो अभी भी वो बता रहा है अभी भी समय में तो क्या तुम जानबूझकर ऐसे करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे। बता रहा है अभी भी तुम्हारे समय है, ये जो म्यूजिक जो बचाएंगे तब तुम तीनों जन मेरा जो मूर्ति को ऊपर दंडवत करना है तो तुम बच जाएंगे। So he's giving them another chance, saying that if you are ready at the time you hear the sound of the horn, the flute, harp, lyre and psaltery in symphony and all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, then good for you. जो म्यूजिक ऐसा सादा म्यूजिक नहीं, सब इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाने से कितना आवाज आता होगा। So it's not just a simple music. Imagine all music together. How loud will it be? और वो म्यूजिक सुन के जो भी जगह में आदमी खड़ा रहेंगे वो जगह में दंडवत करेंगे। So whoever could hear that music should immediately bow down, fall prostrate and worship them. अगर तुम लोग नहीं करेंगे तो But if you don't worship, यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। जो आग में जो जल रहा है भट्टी के अंदर तुमको डाल देंगे। so if you don't worship this golden image, you will be thrown immediately into the midst of a burning fiery furnace. फिर
ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? अब बता रहा है, देख लो, कौन सा देवता, तुम्हारा कौन सी परमेश्वर है मेरा हाथ से तुमको बचा सकता है? And he's questioning, who is this God who can save you from my hands? अब यही राजा ने दानियल से बताया, तुम्हारा देवता, तुम्हारा भगवान बहुत बड़ा है, तुम्हारा राजा बहुत राजा से राजा है। The same king had told Daniel that your God is a God of gods and the King of kings. अभी जो बता रहा, मेरा हाथ से छुड़ाने के लिए कौन सी तुम्हारा देवता है? And now he questions them that who is this God who can save you from my hands? और देख लीजिए, यही समस्या है आपके जीवन में, इस तरह समस्या है तो आप क्या करेंगे? So imagine if you are facing and going through the same situations, what would you do? और हम सब डर जाएंगे। We'll all be afraid. और ये तीनों जन क्या जवाब दिया है? And what did these three men reply? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ये देख लीजिए, जो उसने जो जवाब दे रहा है, राजा इसका उत्तर मुझे हमको देने की जरूरत नहीं है। So we see that the men had said that we don't need to answer. उस 17 में जो लिखा है, जो हम जो स्तुति आराधना जो करने वाले जो परमेश्वर जो है, So in verse 17 it says that if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. वह कि आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो जो आग से बचाने की शक्ति रखता है कौन है? हमारा परमेश्वर। That our God is able to deliver us from your fiery furnace. वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आपका हाथ से भी छुड़ा सकता है। He can also deliver us. हालेलुया। He can also deliver us from your hand. अब देख लीजिए, जो आग से जो है मृत्यु से भी बचा सकता है हमारा परमेश्वर। He can save us from death. और आपका हाथों से भी छुड़ा सकता है। And he can also save us from your hands. परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। अगर हमारा परमेश्वर ने चुना नहीं किया है, तब भी हम जो आपका देवता के हम प्रणाम नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, और आपका जो मूर्ति को भी हम दंडवत नहीं करेंगे करके। But O king, even if our God will not save, उससे पहले ये जो फेंका है, जो आदमी जो उनको आग ने खत्म कर दिया है। before they could throw these three men into the furnace, these strong men who were carrying them, they were killed before them. और जो वर्ष 23 में लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो बंधे हुए फेंक दिए गए। And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fury furnace. अब ये देख लीजिए, जो वर्ष 23 में जो लिखा है, दोनों गिर गया है, तब क्या हो गया है? तब नेबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। अब ये देख लीजिए, जो बता रहा, राजा खड़ा होकर देख रहा है, जो तीनों पुरुषों को नीचे आग में डाला है, अब ये 4 पुरुष जो घूम रहे अंदर आग के अंदर चल रहा है। Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, O king.
Look, he answered. Now we see that Nebuchadnezzar says that he can see 4 men walking loose. और जो समझ लीजिए इनको बांध के रस्सी से जो बांध के जो फेंका है वो रस्सी को प्रभु यीशु ने उसको तोड़ दिया है। We see that those men were bound with ropes, but those the Lord has वो broken. कौन है? Who is that वो God? पूछ रहा है ये कौन है जो चारों व्यक्ति कौन है? He's asking, who is that 4th person that I can see in the fire? हम जो तीनों जन को हाथ के अंदर डाला है 14 व्यक्ति कौन है? We threw 3 people in the furnace, and who is this 4th one? और वो जो दिख रहा है जो परमेश्वर का पुत्र करके वो समझ रहा है। और And he believed that that was the Son of God. और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Let's give a Lord the clap offering. आप देख लीजिए जो 14 जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह वो जगह में आ गया है। And the 4th person is the Lord Jesus, who was present in that जो place. बांधा हुआ जो बंधन को तोड़ दिया है Those bondages that were binding them उनको was आजाद broken, कर दिया है। and it gave them freedom. मैथ्यू 18 में जो हम पढ़ा था जो 2 और 3 व्यक्ति जो जगह में है वो उसके बीच में हम आएंगे करके जो प्रभु ने जो बताया है। And we see that in Matthew, as we read, when 2 or 3 come in my name, I am there in the midst of them. और हम आके तुम्हें छुड़ाएंगे करके जो बताना था। And I will come and save you. और उसका वचन का अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने तीनों को जो बंधन में तोड़ दिया और आजादी कर दिया है। And we see that just according to this verse, the Lord was present in the midst of these 3 men and released them. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह को जो भरोसा करने से क्या हो गया आपको देख लिया। And you can see that when you have faith in the Lord, what happens? और जो है परमेश्वर का वचन जो लिखा है नाहूम जो भविष्य वचन जो लिखा है नाहूम चैप्टर 1 वर्स 7। We see Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him. जो परमेश्वर जो यहोवा भला है, यहोवा भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। संकट के समय में आपके जीवन में जो संकट के समय में प्रॉब्लम के समय में मृत्यु के समय में भी प्रभु प्रकट करने वाला है। So he is good, and he will be, and he knows those who trust in him in the day of trouble. और शरणागतों के सुधि रखता है। हालेलुया। अब ये देख लीजिए उनको ऊपर जो भी भरोसा करेंगे तब प्रभु उनको बचाएंगे। Whoever believes in God, God will save them. और इस तरफ जो क्यों ये तीनों व्यक्ति के सामने राजा कहता है अगर तुम तीनों को जानकर बचना है तो मेरा मूर्ति के प्रणाम करो करके उन्हें जो आगे दे रहा है। We see that the king had given order that if you men want to be saved, you need to worship the golden image. वो जो क्या कर रहा है इस तरफ जो उल्टा जवाब देने के लिए मतलब जो उनका बदला देने के लिए वो तीनों का बस क्या है। And you need to know that what would these 3 men give the answers for. अब ये समझ लीजिए अगर जो उनके सामने खड़ा रहने के लिए उनके सामने जीतने के लिए विजय पाने के लिए क्या चाहिए। So what do these men require to overcome and be victorious? हम वचन संगीता 37 verse 31 Psalm 37 31 वचन पढ़ेंगे। The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. आमीन। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर का जो आत्मा है उनके हृदय में भरा हुआ है। उसके पैर नहीं फिसलते। उसके पैर नहीं फिसल सकते मतलब वो गिर नहीं पड़ेंगे कभी उनको तकलीफ नहीं देंगे करके। Those who put their trust in the Lord will never slide away, never will their heart slide away from the Lord. अब ये देख लीजिए परमेश्वर का वचन इनके तीनों का अंदर है। We see that the Lord's word was in the hearts of these 3 men. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनका अंदर है। The Spirit of God was within them, वो सामर्थ से भर गया है। and they were filled with power. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रियो जो प्रभु जो बता रहा है अगर जो व्यक्ति अगर जो साथ में प्रार्थना किया तो एक मन होकर प्रार्थना किया तो वो जगह में प्रभु आएंगे। And we see that when 2 people believe in the Lord and seek the Lord, He will be there. और पिता परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुन के उत्तर भी देंगे।
and the Father will give answer to their prayers. और जो अभी ये जो बता रहे मेरे नाम से तुम तीनों जन 2 और 3 जन रहे तो वो जगह में मिडिल में आएंगे और मैं उनको छुटकारा करेंगे. And we see that when 2 or 3 are gathered in my name, I will be there in the midst of और them. ये जो जहां में जो देख रहा है ये तीनों व्यक्ति फ्री घूम रहा है वो देख के वो डर गया राजा. And we see that the king was terrified when he saw that 4 people were walking in the midst of the furnace. और जो आ रहा है verse 28 जो आंखें समझ लीजिए उनका आंखों के सामने देखने समय में क्या हो गया है verse 27 में हम पढ़ेंगे. और जो राजा आके बुला रहा है जो परमेश्वर के जो पुत्र है जो तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है तुम लोग बाहर आ जाओ करके वो 26 से पढ़ेंगे हम. So then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fury furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. फिर उसने कहा, राजा जो बड्डी के सामने आके जो कहता है. तब नेबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है. Verse 26. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ ही हानि नहीं पहुंची और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर का पुत्र के सदृश है. फिर नेबुकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ. परम प्रधान के दासों तीनों जो निकल के बाहर आ जाओ. Servant of the Most High God, come out. यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए. तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा. तब उनकी देह में आग की कुछ भी प्रभाव नहीं पाया. अब ये देख लीजिए जो ये सब सबके सामने जो हो रहा है सब जन आके देख रहा है. ये तीनों पुरुष बाहर आने के बाद And we see that all bigger leaders were present there together, and they are seeing that is, and the verse 27 as I read, and the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा. आप ये देख लीजिए, एक आप घर पे आप जो काम कर रहा है जो भी है, अगर स्टोव के सामने गए तो अपना हाथ आंख में जो भी बाल है सब जल जाता है. If you work in your kitchen, you will notice that if your hands come near the stove or near the flame, your hair will start burning. जो आग का भट्टी का अंदर जो गिर गया है तीनों पुरुष, लेकिन उनका एक बाल भी जला नहीं है. And those men who were thrown in the midst of the fiery furnace, not even a single hair of theirs was burnt. उनके मोजे कुछ बिगड़े न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई. अब ये समझिए जो आग का जो स्मेल है वो तक उनका शरीर में, उनका बॉडी में कुछ भी नहीं हुआ. There was no smell of the flame near them or in their body. जो पहना हुआ कपड़े के साथ ऐसे बाहर आ गया है. What they had worn and they were thrown in, they came out just like that. सिर्फ एक चीज हो गया है. Only one thing was क्या different. चीज है? What was it? That their hands were. जो बांध के जो रखा है वो बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया है. That the bound hands were released, and that's how they were released out. और जो वैसा गया ऐसा बाहर आ गया है. And as they went in bound, but they came out released. तब जो राजा देख रहा है इस तरफ जो क्या कैसा चंगा किधर भी देखा नहीं है. And the king is astonished that how can such things, never they've seen such things इस before. तरफ बचाने वाला परमेश्वर कोई नहीं है. That there's no God who can save like what this God has done. अभी जो वर्ष 28 पढ़ेंगे, वेरी केयरफुल, प्लीज वेरी केयरफुल आप सुनिएगा. नेबुकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का परमेश्वर
जिसने अपना दूत बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। अब ये देख लीजिए, जो तीनों जन जो राजा का आज्ञा नहीं मांगा, लेकिन जो उनका जो परमेश्वर है उनको पर भरोसा रखा है। Nebuchadnezzar says in verse 28 that these men, though they did not obey the word of the king, yet they wanted to only worship the God, and that is why the Lord had sent his angels and delivered the servants who trusted in him. ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, देख लीजिए किस तरह जो बता रहा है, अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे किसको हम दंडवत नहीं करेंगे। We see how stubborn the men were, that we are not going to worship any other God but only the God. और जो our यही जो God. सच्चाई परमेश्वर का आराधना करेंगे करके वो जो निर्णय ले लिया था, And they had made a decision that they will worship only the true God. और जो निर्णय लिया उसको पालन किया है। And whatever they decided, they obeyed those words. और जो परमेश्वर का जो दूत, जो परमेश्वर का जो बेटा है, उधर उनको छुटकारा दे दिया है। And we see that the Son of God, that the angel had come there and delivered them. मतलब उसके सामने जो गवाही जो बन गया है और जो देख रहा है वो डिक्लेयर ये कर रहा है। And what the king had seen, he declares it. 29 Verse 29. Therefore I make a decree that any people, nation or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और बिन बिन भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा। जो इनका जो परमेश्वर, इनकी जो बचाया परमेश्वर के खिलाफ कोई भी शब्द आवाज नहीं करना है। That nobody should speak against the God of these men. और जो ऐसा किस तरह जो भाषा कोई भी बोले तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके जो वादा किया। No matter which language they speak, if they speak against the God of Shadrach, Meshach, Abednego, will be cut और off. उन्होंने जो गवाही बता रहा है वही वचन में लास्ट में जो लिखा है। And we see that he himself says, testifies और उसका घर घुरा बनाया जाएगा that there is no God who can deliver like this. क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। इस रीति से बचाने वाला कोई भी प्रभु नहीं है, गॉड That नहीं there है। is no God who can save like this. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, आप उनको पर भरोसा करने के समय में वो आपका प्रार्थना सुनेंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं किया तो भी आपके जीवन में कार्य करेगा। If you believe in the Lord and you ask the Lord, He will definitely listen to your prayer. और जो नेक्स्ट वचन में जो लिखा है, और उनको तीनों को अच्छा स्थान में और ऊंचा कर दिया है। And we see in the next verse that the king had promoted them to more better position. जो आज के दिन जो प्रभु आपसे ये जो बात कर रहा है, आपका घर पे आप अकेले भी प्रार्थना कर लीजिए, अगर टाइम मिले तो अब साथ में सब जन एक मन होकर प्रार्थना कर लीजिए। And as we learn today that you must pray, you should pray alone, but if possible, pray also with your आपके family. जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए तो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। Whatever problems you may come across, He's not going to leave you. वो जो बता रहा है 3 दिन के बीच में कैसा जो प्रभु यीशु मसीह आके उनको छुटकारा दे दिया, उसी वैसे उसी माप में आपके जीवन में प्रभु का कार्य करने वाला है। And just as we read how the Lord was standing in the midst of these 3 men, and similarly, the Lord will come in the midst of you. और आपके जीवन में जो प्रभु जो आशीष करेंगे, चंगाई करेंगे, किस तरह जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो गवाही दिया, उसी तरह के आपका दुश्मन भी आपको बारे में गवाही देंगे। Just like how Nebuchadnezzar the king testified and said, though they were against the 3 men, but he testified the same way, your enemies will also see how the Lord blesses you and they will testify. जो प्रभु का नाम महिमा के लिए आपको जो भी कोई भी निंदा किया होंगे, आपको इंसल्ट किया होंगे, आपको नष्ट किया होंगे, लेकिन सबके सामने प्रभु आपको उच्च स्थान में रखेंगे।
Many people would have spoken low of you, would have insulted you. But when you stand for the Lord, He will lift you up in the midst of all of them. हालेलुया। Hallelujah. अब विश्वास के साथ आज से प्रभु के ऊपर और भरोसा कर लीजिए। With faith, I want you to take one more step closer in your faith. और आपको उनको ऊपर और विश्वास कर लीजिए। Believe more in the Lord. अगर आप आज से देख लीजिए, आपको जीवन में नया चंगाई प्रभु करके देंगे। And you will see from this day forward there will be a new healing in your life. और आज के दिन से आपको जीवन में कितना दिन में आपने जो प्रार्थना जो किया है, आपको उत्तर नहीं मिला, लेकिन आज से God will listen your prayer और आपको प्रार्थना के उत्तर भी देंगे। And if at all till this time you had prayers that were not answered, but believe that from this day onwards you will see your prayers being answered. जो भी समस्या है आए तो आप डरना नहीं। Whatever problems come across you, against you, don't be और afraid. जो आपके लिए जो जीवन दिया परमेश्वर यीशु मसीह को पर विश्वास कर लीजिए। And you need to believe in the Lord Jesus who saves you. जो हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से जो आपको छुटकारा देने वाला है। Because He's the only one who can save you from all your troubles and problems. जो शाद्रक मेशक अबेदnego की जो बचाया परमेश्वर आपको बचाने वाला है। The God who saved Shadrach, Meshach and Abednego will save you also. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Can we give the Lord a mighty clap offering? And we believe that as you heard this word, you will be encouraged in your life and you walk a step closer in faith. Hallelujah. हम धन्यवाद कहते हैं जैसे आपने ये वचन सुना है कि प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा, विश्वास में आपको और आगे बढ़ाएगा। Hallelujah. Let's welcome now as we have Brother Timothy to come to get forward to pray. Let's seek the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Are you all excited after hearing this wonderful word? क्या आप सब उत्साहित हैं आज ये सुंदर संदेश को सुनने से? I'm sure that everyone are excited मैं विश्वास करता हूँ कि तुम लोग सब उत्साहित हैं and we are so energized. और हम सब बहुत ही ताकत पाए हैं। And thank you for all for staying throughout this worship service. और पूरे सर्विस में आप हमारे संग मौजूद थे, उसके लिए हम धन्यवाद करते How हैं। wonderful our God is, you know. हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। In spite of the burning furnace which Shadrach, Meshach and Abednego was going through. इतना ऐसा भट्टे के बीच में भी, इतना आग भरा हुआ भट्टे में भी परमेश्वर थे, हमने देखा। But He never left them. लेकिन परमेश्वर ने शाद्राक, मेशक और अबेदnego को कभी नहीं छोड़ा। Jesus was still with them. परमेश्वर यीशु उनके संग मौजूद थे। That shows the faith which we need to have. और ये दिखाता है कि हमें कितना विश्वास की जरूरत है। A faith which is undoubtedly. एक विश्वास जो बहुत ही विश्वास के साथ। A faith which has so much of power. जिसके पास एक विश्वास, जिसके पास इतना सामर्थ्य रहता है। And even though in the times where they are not sure, they said, even though when we are here and God, we still believe the Lord Almighty God. और उन लोग ऐसे कहते हैं कि हम यहाँ हैं तो भी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे। Even if God doesn't save us, we still worship the living God. और अगर परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया तो भी हम वही परमेश्वर का आराधना करेंगे। I think that is the faith which we need to have. और इसलिए ये विश्वास की बहुत जरूरत है हमें। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We thank the worship team for this wonderful worship which we have led us. और आराधकों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिसने हमें आज की आराधना में चलाया। And we thank the pastor for sharing this wonderful word. और हम पासवान के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज के संदेश को बांटा। And I'm sure that each one of us will take this word throughout this week. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश जो हमने सुना है पूरे हफ्ते हमें चलाएगा। We are so energized to see this wonderful time which God has given us. बहुत उत्साहित है कि परमेश्वर ने ऐसा एक समय हमें दिया है। And this Lord is the same God who saved Shadrach, Meshach and Abednego. और यही वही परमेश्वर है जिसने शाद्राक, मेशक और अबेदnego को बचाया। And the word says that He is the same God yesterday, today and forever. वचन कहता है कि ये वही परमेश्वर है जो कल, आज और सदा के लिए वही रहते हैं। At times we need to really have that faith which Shadrach, Meshach and Abednego had. और समस्याओं के बीच में भी ऐसे विश्वास की हमें सख्त जरूरत है शाद्राक, मेशक और अबेदnego जैसे। Especially the times where currently we are in the pandemic season, right? और ये समय में जब महामारी बहुत चल रहा है, हम देखते हैं। Come on, let us exhibit our faith towards this. आए हम ये विश्वास को दिखाएं हमारे जीवन में। He is so wonderful, just हमारा and faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। As we conclude this service, let us look up to the Lord in prayer.
और जैसे आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं, आइए प्रार्थना करके परमेश्वर की ओर देखें। We thank you, Lord, for this wonderful time you have given us. परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने दिया। We thank you for this grace that you have extended in our lives. आज के अनुग्रह को जो आपने दिखाया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। There are many who have not witnessed this day, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस दिन को देख नहीं पाए, but we are living testimonies that we are witnessing this wonderful day. लेकिन हम एक जीवित गवाही है जो आज के दिन को हम गवाही बना के देख रहे हैं। It's not by our works, it's not by our great deeds, यह कुछ भी कार्य की वजह से नहीं हुआ है but प्रभु, it's by your grace, O Jesus. हमारे वजह से नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह है प्रभु। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We praise you, Master. We धन्यवाद glorify you, यीशु। Father God. हमें महिमा Thank you, देते thank हैं। you, thank you, Jesus. Come on, church. Lift up your voice and praise Him. Give you all the glory, Lord. हम आइए अपनी आवाज उठा के परमेश्वर हम कहे, प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं। Thank you, Jesus. We धन्यवाद thank you, यीशु। Jesus. We thank you for this wonderful time you have सुंदर given us, समय Lord. जो आपने दिया, धन्यवाद। Lord, yes, Master. Without you, we are nothing, Lord. कुछ भी नहीं है हम प्रभु आपके अलावा। We give you all the glory and honor, सारी Master. महिमा हम आपको देते हैं। Even at this moment we are here, it's all by your grace, आज Lord. भी हम जीवित हैं आपके अनुग्रह We प्रभु। thank you for the wonderful team which you have led us, Master, as we begin the आज service. जैसे हमने शुरुआत किया है, आराधकों के लिए धन्यवाद करते हैं We thank you प्रभु। for the wonderful word which Pastor had shared और amongst पासवान us. ने जो संदेश बांटा उसके लिए हम धन्यवाद करते We हैं। thank you for speaking to us through your word, O Father. धन्यवाद यीशु, आपने वचन द्वारा हमसे बांटा है। Lord, you said, Master God, even if the heavens and the earth might pass away, but your word will remain in our lives, O Father और प्रभु God. जैसे अपने वचन में कहा, स्वर्ग या पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। We receive your word in the name of our Father, the Son, and the Holy और Spirit. आपके वचन को हम प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा। Help us to dwell in your word, O Father God. आपके वचन में हमें मनन करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। And let your word lead us in the name of और Jesus. आपके वचन हमें चलाए यीशु के नाम से। Let us not live by bread alone, but by your word, O Master. केवल हम रोटी से नहीं, लेकिन आपके वचन द्वारा जीवित रहे We प्रभु। thank you, Master. You're so wonderful. You're so great, O Father. आप महान है, इतने सर्वशक्तिमान है You प्रभु। said your love endures forever. प्रभु आपका प्रेम जो है अनंत काल तक रहेगा। And you're so tender in mercy, O Father प्रभु God. आपके अनुग्रह हमारे संग हर पल मौजूद We है। give you all the glory and honor. धन्यवाद, सारी महिमा आदर देते हैं। Prepare ourselves as we are entering into this new week. जैसे नए हफ्ते में हम जाते हैं, प्रभु हमें तैयार In कीजिए। everything we do, let your name be glorified. जो कुछ भी कार्य हम ये हफ्ते में करते हैं, आपका नाम की महिमा हो, Let your name be magnified, O आपके Father. नाम ऊंचा उठाई जाए। And we keep each and every one into your precious hands. हर एक को आपके हाथों में हम समर्पित करते We हैं। keep your beloved ones into your precious hands, O Lord. आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। Let your name be glorified in and through our lives. यीशु के नाम से हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा हो। Let our actions speak more than our words, O Father प्रभु God. हमारे मुंह के शब्दों से भी ज्यादा हमारे कार्यों में बात हो जाए प्रभु। We thank you for this time you have given us. हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने दिया। You said if 2 or 3 gather in your name, you are there in our midst. प्रभु आपने कहा जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ हूँ। And we believe that you are there in our midst, O Lord. और विश्वास करते हैं कि आज भी आप हमारे बीच में मौजूद है। We give you all the glory and honor, Master. सारी महिमा आदर आपको देते In हैं। Jesus' most precious name, we humbly pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Come on, have that energy and praise the Lord Almighty आइए, God. मुंह खोल के उत्साह के साथ परमेश्वर की Hallelujah. स्तुति हो। Hallelujah. आमेन। Amen. Amen. आमेन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे आप ये प्रार्थना को दोहराइए। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा का धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को और उसी किसी उपकार को न भूलना। तो न भूलना। आमेन। आमीन। आशीष लेंगे। हमें पापों से, श्रापों से, मृत्यु से जो बचाने वाला है, अनुग्रह करने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज से नया तरीके से नया चंगाई आपको जीवन में करने वाला है, उसके लिए विश्वास के साथ प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। आमीन। Praise the Lord. God bless you all. आप सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं कि कलीसिया के मेंबर्स को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। You took the time out to be seated in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आज भी महान कार्य करेगा। जैसे we have meditated, the Lord is faithful. Hallelujah. आज का वचन बहुत भारी रूप से, it's a very deep word that we have received, and God is in our midst today also. Hallelujah. God bless you all. You can share this links with your family members and friends. आप जैसे हमारे साथ Facebook and YouTube पे जुड़े हैं, The Heart of Christ Church and the Revelation Rockers channel. We pray that the Lord will bless you continually. आप और प्रभु में बढ़ते रहिए चर्च के एक्टिविटीज में। I want every member to please kindly be active in the church activities. We all are praying for you. पासवान आपके लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं परिस्थिति कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, ऐसे जो अग्नि भी और जलते 7 गुना और ज्यादा भी बढ़ जाए, पर हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों के बीच में है, हमारे कलीसिया के बीच में है। आमेन। God is in the midst of us. We shall not be moved. हम कभी हिलेंगे नहीं। हालेलुया। May God bless you all. ये पूरे हफ्ते प्रभु आप सबको संभाले, प्रभु आप सबको आशीष करे। Thank you so much. God bless you.